Till when do you have to जब keep on तक drinking? प्याला उमड़ने न लग जाए। Until your cup starts to दाऊद कहता overflow. है मेरा प्याला उमड़ रहा When you say my है। cup is overflowing, Be filled with the Spirit. भर जाओ आत्मा से। शराब एक चीप काउंटरफिट है स्पिरिट फिल्ड लाइफ का। Alcohol is a cheap counterfeit of a spirit-filled life. इट्स अ काउंटरफिट। लोग कहते हैं शराब पीएंगे हमें अच्छा लगेगा। People say they'll drink alcohol and feel good. परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 14:17 में The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Roman 14:16 the Bible says the kingdom of God is righteousness, peace and joy. मैं धार्मिकता, आपको शांति और guarantee दे आनंद रहा है हूं, पवित्र आत्मा में। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो रोज, आप डिप्रेस्ड हो, पॉसिबल ही नहीं है। I guarantee you, if you pray in tongues every day, it is impossible that you will be depressed. जॉय बबल करने लग जाएगा आपके अंदर। Joy will start bubbling through you. Amen? जो शराबी होता है वो हंस रहा है, उसको कोई उसकी लॉटरी नहीं लगी, वो मजा आ रहा है उसको। He who is drunk will laugh without anything, without any reason. आपको इस मसीह जीवन में मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आत्मा से भरे हुए नहीं हो। You're not enjoying this Christian life, Christian walk because you're not filled with the Spirit. आत्मा से भर जाओ, आपको सुबह शाम इतना मजा आएगा यीशु मसीह में। When you are filled with the Spirit, you will enjoy every day and every evening. Amen? जब दोबारा से लगाइए एक्ट्स चैप्टर 2, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो देखिए लोगों ने क्या कहा उन्हें। See what happened when people got filled with the Spirit. क्या बोला लोगों ने? What did the people say? उन्होंने कहा इन्होंने नई दाख मधु पी है। They say they have drank the new wine. Amen? Hallelujah. Next verse. Next verse. Put it there where they start saying that they are being filled. 7. Others walking said they are full of new wine. कुछ ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये नई मदिरा से भरे हुए उसके नशे में। Amen? आप जानते हैं जो शराब बनाई गई थी, जिस साइंटिस्ट ने बनाया था, it was made to combat depression and suicidal thoughts. Do you know the scientists who made this? उन्होंने डिप्रेशन और बुरे विचारों से लड़ने आप के लिए सुनो बनाई थी। एक बात, Now hear carefully. जो अल्कोहल है वो किस चीज से है? उसको कहते हैं स्पिरिट। What alcohol is, it's called spirit. क्योंकि जब आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। When you'll go into the history, you'll मेरे understand. पास टाइम नहीं वहां जाने के, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि शराब एक चीप इमिटेशन है पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन का। Yeah. Alcohol is a cheap imitation of a life filled with the Holy Spirit. आपको शराब की जरूरत नहीं है जॉय में जीने के लिए। You don't need alcohol to live in joy. आपके लिए पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर। God has given the Holy Spirit for you. Amen? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे और उमड़ने दोगे, When you'll be filled with the Holy Spirit and overflow with it. आप जानते हैं जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, एक्चुअली में क्या हो रहा है? आप अपने प्राण में पी रहे हो उस नई दाख मधु को, जो परमेश्वर का आत्मा है। When you're praying in the Holy Spirit, what is happening? You're drinking this new wine into your soul. जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, जब मैं चर्च गया था, मैं इवन इफ यू विल सी मी, अगर मैं ऑफ स्टेज हूँ, आई एम नॉट अ वेरी outspoken person, but when the anointing comes, when the Spirit comes over, there is a boldness that takes over. When I'm off stage, I'm a different person, but when I come under the unction of the Spirit, there's a boldness that takes over. जब मैं प्रभु में आया 19 साल में और मैं अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करता, When I came to the Lord, I would pray in tongues every day. और फिर कोई दुष्ट आत्मा आ जाती, And if a demonic spirit would come, अचानक से वो पवित्र आत्मा जो अंदर है वो शेर की तरह दहाड़ने लग जाता। the spirit that was inside, the Holy Spirit would come out like a lion. जो आत्मा आपके अंदर रहता है वो आपको सब बातें सिखाएगा। The Spirit that lives in you will teach you all things. Amen? Hallelujah. मैं आपको आज बता रहा हूँ, शैतान नफरत करता है जब बिलीवर्स अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। I'm telling you, the devil hates it when believers speak in tongues.
he fights tooth and nail so that he can stop believers to pray in the Holy Ghost. वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है लड़ने के लिए कि विश्वासी लोग अन्य वो भाषा आपको ना बोले. कन्विंस करना चाहता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बकवास कर रहे हो आप, ये इसका कोई महत्व He नहीं. wants to convince you you're wasting your time, you're just blabbering, this will not benefit you. मगर करके देखो, But try doing it. कंसिस्टेंटली, बिना रुके, हर निरंतर, रोज every day. pray in the Holy Ghost. अन्य भाषा में प्रार्थना करो. Pray in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. आप जानते हैं बाइबल में रोमियो 8:26 में लिखा है कि जो आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं वो हम परफेक्ट विल ऑफ गॉड के हिसाब से प्रार्थना करते हैं. Romans 8:26 says, when we pray in tongues, we pray the perfect prayer. कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की परफेक्ट विल पूरी हो आपके जीवन में? मुझे अपना हाथ दिखाइए. How many of you want the perfect will of Perfect God will, to जो come into your परमेश्वर की life? है. उसकी सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी हो. कितने लोग चाहते हैं? तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें. Then pray in tongues. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वाइफ इस बात को जानती है, कई बारी मैंने अपने आप में अन्य भाषा में प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने मुझे चर्च में लोगों का नाम दिखाया, बताया कि शैतान मारने वाला है उस व्यक्ति को, Yeah. या एक्सीडेंट होने वाला है, तो प्रार्थना कर, घुटनों पे आ. इंटरसेशन, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा इंटरसेशन कर. Sometimes when I'm praying in tongues, I would get the name of the person that devil is trying to kill this person or pray for them. मध्यस्थी उस प्रार्थना के द्वारा होती है अन्य भाषा में. मैं उदाहरण पहले कई बार दे चुका हूँ, पर कुछ लोग नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता I've given this हूँ. example नेहा before. इज इन विटनेस है यहाँ पे. नेहा हम लोग गवाह है. 4 लोग थे, हम कलीसिया में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे. For us of praying in the church in spirit in और tongues. अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला कि चर्च का कोई मेंबर है जिसका